Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالعاد السلام علیکم ناظرین، ہم اب دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں پہلے سبق کا، اور یہ ہے گرامر کا۔ گرامر میں ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آف کورس دماغ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ بولیں گے بھی ہمارے ساتھ اور بتائیں گے بھی، بولنا بھی ہے آپ کو اور بتانا بھی ہے۔ اب گویا اپنے سارے وجود کا، ٹوٹل فزیکل سارے وجود کا استعمال کرنا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ پورا نظام ہے، اس میں ہزاروں الفاظ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، یا ہزاروں بار آنے والے الفاظ بآسانی سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ یہ مت کہیے کہ بعد میں سیکھ لوں گا، جب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹائم آپ نے نکالا ہوا ہے تو ساتھ میں پریکٹس کیجئے، بہت جلدی سیکھ لیں گے آپ۔ میں آپ کو اس وقت دو مثالیں دوں گا، مثالیں کئی ہیں لیکن آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بعض وقت شروع میں شرم آتی ہے۔ ٹی پی آئی ہے کیا؟ مثلا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، یعنی ہاتھ کے اشارے کرنا ہے۔ لوگ جو ہے بڑا مشکل محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں، ذرا شرم آتی ہے کہ کیوں ہم ہاتھ ہلائیں، لیکن یاد رکھیے کہ مثلا آپ موبائل پر بات کر رہے ہوں اور کسی کو ڈائریکشن سمجھا رہے ہوں راستے کا، تو آپ موبائل لے کر آپ کہیں گے بھائی ذرا سیدھا جانا اور بعد میں رائٹ ٹرن لینا، رائٹ ٹرن کے بعد گول گھومنا۔ بھائی جب وہ سامنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا برین، ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اسی طرح ڈیزائنڈ ہے، وہ اسی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے سیکھنے کے لیے ہم اشاروں کے ساتھ سیکھیں گے تو دماغ کی لینگویج کو استعمال کریں گے اور بہت جلد سیکھیں گے۔ تو یہ پہلی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور موبائل پہ بات کرتے وقت آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو اس میں بھی حرکت دیجئے ہاتھ کو۔ دوسری مثال ایبیکس کی ہے۔ ایبیکس وہ میتھمیٹکس کا بالکل فاسٹ طریقہ، جاپانیز میتھڈ ہے کہ آدھی تختی اور آدھے بیڈز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پہلے جو ہے بچوں کو جو ہے 2+3 تو بیڈز کو حرکت دیتے ہوئے سمجھایا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ انگلیوں پہ کرتے ہیں، 2305 جمع 5308، وہ سیکنڈ میں جواب دے گا، وہ انگلیوں پہ اور دماغ میں۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ اشارے شروع میں آپ اشارے کریں گے، بعد میں آپ کو اشارے کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ جس وقت انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ گویا ایک طرح سے عربی کا ایبیکس ہی سمجھ لیجئے اس کو۔ یہ بہت ہی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں صیغے بہت سارے ہیں، ایک فعلہ سے آپ 50-60 جو ہے مختلف صیغے بنا سکتے ہیں، پھر اس سے اور جو ہے مزید جو اس کے ڈیرائیوڈ فارمز ہیں، فعل سے فعل، فعل تفعل، تو اس میں جو ہے آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا، بنانے کے لیے بہت آسانی سے آپ سیکھیں گے۔ یہ اشارے آسانی کے لیے ہے، اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے، اس لیے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے، یعنی شیطان کو یہ موقع مت دیجیے کہ ارے میں کیوں حرکت دوں بھائی، اس میں تو شرم آ رہی، یہ بات مت کیجیے۔ 125 الفاظ اس کورس کے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، میں چاہوں تو آپ کو دے دوں کہ بھئی یہ 125 الفاظ یا رفلی 100 الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی 125 ہیں۔ یہ 40,000 بار آئے ہیں قرآن میں جو ہم اس کورس میں کر رہے ہیں 9 گھنٹے کے یا 19 سبق کے۔ اگر میں یہ کہہ دوں یہ الفاظ لے لو اور سیکھ لو تو انسان ویسے یاد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں۔ میں شروع میں جب آج سے 20-25 سال پہلے یاد کرتا تھا تو مثلا 2 الفاظ لے لیجئے، کرسی کا مطلب ہے چیئر اور فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر فیل ہاتھی، یعنی آپ رٹتے جا رہے ہیں کرسی چیئر فیل۔ 4 دن کے بعد کرسی ہاتھی بن جاتی ہوگی اور فیل جو ہے وہ چیئر بن جا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ دماغ جو ہے ایسا لسٹ سے یاد نہیں کرتا۔ کسی نے کبھی کسی کو آپ نے ڈکشنری سے زبان سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو طرح طرح سے، مختلف طرح سے ایسے سکھا دیں کہ آپ یہیں سیکھ لیں۔ تو جس طرح میں کہوں اس طرح سے کیجئے، اور اگر آپ کو عربی آتی بھی ہو تو آپ اس نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے، انشاءاللہ بہت آسان پائیں گے آپ اس کو۔ ٹی پی آئی کے ذریعے اس کورس میں
9 घंटे के कोर्स में 19 असबाक के कोर्स में जो अल्फाज सीखेंगे आप, वो जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 20-25 अल्फाज, ये खुद कुरान करीम में 18,500 बार आते हैं। 18,500, 25%, यानी कुरान का हर चौथा लफ्ज औसतन इन्हीं अल्फाज से आएगा, और इसको आप बआसानी टीपीआई के जरिए सीख सकते हैं। और आगे जब आप इंशाल्लाह सेकंड कोर्स और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि कुरान के 19,000 अफ़आल से बने हुए अल्फाज जो हैं, यानी 25% वो अल्फाज प्लस ज़मायर हुरूफ वगैरह मिलाकर मजीद 11,000 अल्फाज, यानी कुल 30,000 से ज्यादा अल्फाज, यानी 40% कुरानी अल्फाज आप टीपीआई के जरिए बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि कुरानी अल्फाज समझाते हुए, जैसे मैं कहूँगा समझाते हुए भी टीपीआई बड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे तुरजाउन, अगर मैं एक लफ्ज तुरजाउन का इशारा यूं करूं तो इसमें 5 चीजें आ गई हैं। तुरजाउन हाजिर के लिए है, जमा के लिए है, मुजक्कर के लिए है, और माजी नहीं मुजारे है, और एक्टिव नहीं पैसिव है। एक इशारा आपको 5 चीजें समझा देगा। तो कुरान समझाते हुए तो ये और भी काम आता है, बहुत काम आता है। सीखने के लिए तो आता ही है, लेकिन जब आप कुरान सीखेंगे, शुरू करेंगे तो बहुत ही काम आता है। तो हम आज 6 अल्फाज सीखेंगे टीपीआई के जरिए, सिर्फ 4 मिनट की प्रैक्टिस में। 4 मिनट की प्रैक्टिस में ये 6 अल्फाज कुरान करीम में 1295 बार आते हैं। इसको हम अच्छा सीख लेंगे, सिर्फ टीपीआई के जरिए करिए, बहुत मौसर होगा। तो क्या करेंगे आप? टीपीआई क्या है? हुआ जब आप कहेंगे तो अपना सीधा हाथ सीधी तरफ, सीधा हाथ सीधी तरफ इशारा कीजिए एक उंगली से, और तसव्वुर कीजिए कि वहां पर एक शख्स बैठा हुआ है। ठीक है? तो मेरे बाद दोहराइए, हुआ वो। हुआ वो। मेरे बाद दोहराइए, हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। चारों उंगलियां सीधी तरफ इशारा कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि वहां 4 बैठे हैं। आपका तसव्वुर बहुत जरूरी है, दिमाग में वो रजिस्टर होगा। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप मेरी तरफ इशारा करेंगे और मैं आपकी तरफ। अंतुम आप सब। आप चारों उंगलियां मेरी तरफ इशारा करेंगे और मैं कहूंगा हम 4 हैं। मैं हूं, मेरे साथ वो मेरा दुश्मन शैतान जिन है, और 2 फरिश्ते भी हैं, हम 4 हैं। ठीक है? तो अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। अना मैं। अना मैं। नहनु हम सब। नहनु हम सब। हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप। अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। अना मैं। अना मैं। नहनु हम सब। नहनु हम सब। हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप। अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। अना मैं। अना मैं। अपनी तरफ, और नहनु हम सब। और 2 बार, हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो सब। अंता आप। अंता आप। अंतुम आप सब। अंतुम आप सब। अना मैं। अना मैं। नहनु हम सब। हुआ वो। हम वो सब। अंता आप। अंतुम आप सब। अना मैं। नहनु हम सब। अब आप लोग तर्जुमा करेंगे, इशारे करना है। और मैं नहीं समझता किसी का हाथ 10-20 किलो का होगा कि उसको उठाने में मुश्किल हो रही है। आप दूर करने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रख लिये, लेकिन इशारे जरूर कीजिए, बहुत फायदा होगा। अभी नहीं, जैसा मैंने कहा, कई इशारे हैं, 40,000 अल्फाज के इशारे हैं, तो बहुत सारा 40% अल्फाज के लिए इशारे हैं, 30,000 अल्फाज के लिए। तो इसको अभी से करिए। तो तर्जुमा कीजिए इशारों के साथ। हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। अब आपको समझ में आ गया, इशारों से मालूम हो रहा है कि किसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। अब अरबी में बात करेंगे, मेरे बाद दोहराइए सोचते हुए, आपका जहन चाहिए मुझे। ठीक है? न सिर्फ अल्फाज बल्कि जहन भी और इशारे भी। मेरे बाद, हुआ हम। हुआ हम। अंता अंतुम। अंता अंतुम। अना नहनु। अना नहनु। हुआ हम। हुआ हम। अंता अंतुम। अंता अंतुम। अना नहनु। अना नहनु।
हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। अना जो है ना, इसको अना नहीं पढ़ना चाहिए। अरब कुरान में सारी जगह अना पढ़ना चाहिए, अगरचे कि अलिफ है, लेकिन इंसान चाहता है कि अपनी आवाज को बहुत खींचे, मैं, तो वहीं काट देना चाहिए इसको, अना। ठीक है, अना नहनु। अब मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, सब लोग मेरे साथ, मैं जैसा इशारा करूंगा वैसे पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु, 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 हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। दो बार, हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। माशाअल्लाह, बिल्कुल आसान है, इजी है। 6 अल्फाज आपने सीख लिए जो कुरान करीम में 1295 बार आते हैं। माशाअल्लाह, 4 मिनट की मेहनत में अगर आप इतना सीख रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप में से बाज़ लोग कहेंगे कि ये क्या किया आपने, हुमा और अंतुमा और हिया हुन्ना, ये सब क्यों नहीं सिखाया, अंती अंतुन्ना, ये सब क्यों नहीं सिखाया। हम कहेंगे उसको हम बाद में सीखेंगे, अभी से सारे सेगे सिखा देंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये 6 कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए हमने 6 से शुरू किया है, बाद में हम दूसरे सीखेंगे, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, बाद में सीखेंगे उसको। लेकिन अगर आपको मसलन जो है बच्चे को ओलंपिक्स में शिरकत करानी हो और बच्चे को अभी से तैयारी कर रहे हैं आप दौड़ाने की, और पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो रास्ते में मर जाएगा, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बिल्डअप करें। और एक दूसरी बात, दो के और मोन्नस के सेगे बाद में इसलिए भी सीखेंगे, कुरान में मुज़क्कर का सेगा बहुत ज्यादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कुरान कहता है तो इससे मर्द और औरत दोनों मुराद है। ठीक है, अब हम इस छोटे से टाइम में 1 मिनट में आपको कुछ अहम बातें कहना चाह रहे हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास ताकतवर दिमाग मौजूद है। याद रखिए, आपके जहन में 1 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर खलिए की 20,000 तक शाखें हैं आपके, और ये शाखें एक दूसरे से 500 टाइम्स पर सेकंड मिलती और बिछड़ती, इतना पावरफुल दिमाग है आपके पास जो है, और मुश्किल से 5% दिमाग इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल मत फिक्र कीजिए कि मैं कहां से सीखूंगा, तकरीबन दिमाग खाली पड़ा हुआ है, और आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरते हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए, 97% दिमाग जिंदा है, उसमें से 5% इस्तेमाल हुआ है, 92% खाली है। आपकी उम्र भी हो गई तो भी आप कुरान सीख सकते हैं। और याद रखिए, दिमाग के लिए और पट्ठों के लिए वर्जिश जरूरी है, ये बहुत अहम नुक्ता है। यू यूज इट और लूज इट, और ज्यादा उम्र हो गई आपकी तो ज्यादा जरूरी है, तो आप कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, आपका दिमाग जिंदा रहेगा। और हम कहेंगे क्यों ना कुरान याद करें आप। तो नाजरीन, इसी पर हम पहला सबक खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह अगले सबक में मुलाकात होगी क्लास में। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون بالآر